आदित्य L1 का लॉन्च होना है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसरो में पुणे में जो आयुका सेंटर है वहां क्या कुछ हुआ है। सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यहां पर बना है, यहां पर टेस्ट हुआ है। ये वही लैब है जहां पर आयुका के साइंटिस्ट पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे। आज जो सफलता मिली है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्री आनंद, उन्हें क्या कहना है। सर क्या कहेंगे कितनी बड़ी सफलता है। Yeah, it's an important moment for Ayuka. Following our earlier mission of building a UV satellite, which is with Astrosat, this is the second telescope in UV which is going from this institute. It's a very proud moment for us, and we think it is a next step, and we should be building a much bigger UV telescope in future. Thank you. ये बताइए कि बहुत बड़ी टीम ये टेलीस्कोप पर काम कर रही थी। हेड दुर्गेश जी और राम आनंद कर रहे थे, उसके बारे में। Yeah, I think it is a combined effort of instrumentation team here. It is a well-known team all over the world. It builds various detectors for various telescopes across the world. This is the first time a full thing is conceived and built for space-based this thing, and the science component is given by Durgesh Tripathi, and it's a very good combination. And I hope from Ayuka such combination happen in future, and several theoreticians interact with our instrumentation team and build various instruments to do science. दुर्गेश जी आप बताइए, राम प्रकाश जी आप भी बताइए कि ये कितने सालों से काम चल रहा था, क्या कुछ किया। ये जो टेलीस्कोप है जो कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप हमने प्रपोज किया था 2013 में। 2013 के बाद इसरो में जैसे वेरियस डिटेल रिव्यूज होते रहते हैं, वो हुए। फिर 2015 में फाइनली अप्रूवल हुआ। 2016 से काम चल रहा था, बट 2016 से फिर उसका फुल फ्लेजेड काम होना शुरू हुआ, और फाइनली 2023 जून में हमने टेलीस्कोप को डिलीवर कर दिया। तो टोटल 10 साल 11 साल रफली इसमें टोटल लगे हैं हमारे और प्रोफेसर राम प्रकाश के और पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन टीम के। और सारे लोग यहाँ पे नहीं है, हमारे कुछ टीम मेंबर्स बैंगलोर में है जो वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज देख रहे थे, इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर रहे थे। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट टाइम लास्ट 10 years एंड वी हैव एंजॉयड इट थॉरोली। राम प्रकाश जी आप बताइए, ये टेलीस्कोप कितना बड़ा है, वजन कितना है, और यहाँ पे इस लैब में क्या कुछ हुआ। The telescope itself is about 30 kilograms in size, and it has a volume of about it's about 1.5 meters long, 500 millimeters by 500 millimeters in size, in width and breadth. But more than that, what is going inside that volume, that small volume, is what is unique. What has happened here at Ayuka is the conception of the payload itself. Its first engineering model was built here and tested to demonstrate that such a payload can really be built, and the challenges of making the mirrors, aligning the mirrors, etc. can be tackled. So all that initial tests were done here. But then what happens is, since it's an ultraviolet payload, we need to have ultra clean rooms. Any contamination, even oil from your fingers or particles in the air, can contaminate the payload and affect its performance. So we have to build very clean rooms, and we did not have enough space here. So those clean rooms were built in ISRO, and the final version, the flight model, etc. of the payload was built in ISRO facilities in Bangalore. Thank you. दुर्गेश जी आप बताइए कि यहाँ पर भी एक क्लीन रूम है और यहाँ पर जो उसका टेस्टिंग भी हुआ है, इनिशियल जो टेलीस्कोप आपने बनाया था वो वक्त कैसा रहा और आज कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी तो शुरू से ही थी, जब प्रपोज किया और जब एक्सेप्ट हुआ तो इट वाज काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू इफ यू लाइक। आई ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट इन 2011 and we had this proposal approved in 2015, and in between we already were in the process and we already were getting good hints that this proposal will be accepted. ये टेलीस्कोप जो है कैसे काम करेगा, जो सबके मन में होता है कि चांद यहाँ से तकरीबन 3,40,000 किलोमीटर दूर है और 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो L1 पोजीशन है, तो वहां पर ही जाकर क्यों वहां से सूरज को देखने का काम होगा। देखिए, वहाँ ये जो जगह है इसको हम फर्स्ट लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं,
फर्स्ट लगना जो सिग्निफिकेंस है ये है कि ये सन और अर्थ के बीच में पड़ता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे सैटेलाइट डालेंगे, सैटेलाइट रोटेट करेगा, वो सूरज के दोनों तरफ जाएगा, चारों तरफ से जाएगा जैसे धरती जाएगी, है ना। तो ये एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक प्लैनेट की तरह मूव करेगा। तो उससे क्या होगा कि सैटेलाइट सन को हमेशा 24 घंटे देखेगा और उससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। और ये जो आपकी लेबोरेटरी है, यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहीं पर इस टेलीस्कोप का जो इनिशियल फेज है उसका काम हुआ है? हाँ जी, यहीं पे हुआ। और जो आपकी यहाँ की क्लीन रूम है उसके बारे में बताइए, जरा दिखाएंगे आप हमें? हाँ, प्रोफेसर राम प्रकाश दिखा सकते हैं। सर बताइए। Clean room, we'll have to go somewhere. Not inside, just from outside. Can you show us? We have to go so far. It's outside there. It's not here. तो देखिए, ये ही वो लेबोरेटरी है जहाँ पर इनिशियल स्टेज में जो टेलीस्कोप बन रहा है, जो कि अब जो आदित्य L1 मिशन कल लॉन्च होना है, उस यान में ये टेलीस्कोप भेजे जाने वाला है। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि पुणे का जो आयुका सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ के जो साइंटिस्ट है उनके टीम ने ये महत्वपूर्ण टेलीस्कोप बनाया हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है आयुका के लिए, पुणे के लिए। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।